Good morning, guys. Now, this class will start with science part 2. Clear? Okay. So, in part 1, we have already studied about the cell, right? Now, in this class, we are going to see that how the cell came. Okay. Yes. So, now in this class, we'll be seeing the discovery of cells. Okay. Cells are so tiny. We know that cells are very, very, very small and we cannot see them by our naked eyes. To observe the cell, we'll require the microscope, right? Yes, we know this. These were discovered by Robert Hooke in 1665. Firstly, Robert Hooke discovered these cells in 1665, but those means the cell which he discovered was the dead cells. Okay, so firstly, Robert Hooke discovered the dead cell in 1665. Clear now? He examined a thin slice of bottle cork under a self-made crude microscope. So he observed, the cork from the bark of tree. Means he observed a cork from the bark of tree. bark of tree से में उन्होंने cork को observe करा था. किससे? By the microscope which he only made. By the self-made microscope. Is it clear? Means firstly he discovered the cell, right? From where? He discovered that from the bark of tree. He saw cork from the bark of tree with his self-made microscope. ओके मतलब वो उन्होंने माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था, उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने कॉक को ऑब्जर्व करा. व्हेन ही ऑब्जर्व द कॉक he saw a honeycomb like structure somewhat like this. We don't know how to make that. Okay, somewhat like this, and there were compartments made in that. चेक्स थे वहाँ पे, ठीक है, बॉक्स थे, ऐसे पूरे. हाँ, उसमें कॉक में जब उन्होंने उसे पास से ऑब्जर्व करा था, जब उन्होंने उससे अपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते, उसमें ऐसे करके कंपार्टमेंट्स का स्ट्रक्चर दिख रहा था. उन्हें कंपार्टमेंट्स का स्ट्रक्चर दिख रहा था, और वो यही कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम क्या दिया? सेल नाम दिया. यही स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल नाम दिया. ओके, होप इट इज क्लियर टिल हियर. इज इट क्लियर? ओके. Now the term cell is derived from Latin word cellula. This word is derived from a Latin word, and that word is cellula. The meaning of this word is, I'm so sorry. The meaning of this word is a little room. अब देखो ये कंपार्टमेंट बना है, तो ही थॉट टू गिव द नेम एज सेल टू दिस कंपार्टमेंट. ओके, सो बेसिकली Robert Hooke
observe the cork from a self-made microscope, and as soon as he observed, he saw a honeycomb-like structure over there. There were compartments made, and he gave the name cell to those compartments, right? And basically cell is derived from a Latin word cellula, and the meaning of this Latin word cellula is a little room. Hope it is clear till here. क्लियर है ना? ओके अब हम बात करेंगे एंटन वैन लीeuwenhoek की. एंटन वैन लीeuwenhoek की बात करते हैं. एक मिनट. एंटन वैन लीeuwenhoek. एंटन वैन लीeuwenhoek. तो बेसिकली अगर आपसे कोई भी पूछे कि सबसे पहला डेड सेल कौन ऑब्जर्व करा, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक. और अगर कोई पूछे सबसे पहला लिविंग सेल कौन वो क्या था, ऑब्जर्व किया था, सो यू विल गोइंग टू से दैट एंटन वैन लीeuwenhoek. ओके, बेसिकली एंटन वैन लीeuwenhoek ऑब्जर्व the first living cell, okay, in 1674. He observed that. Anton van Leeuwenhoek was a Dutch merchant, and he observed red blood cells, unicellular organism from the pond water. He observed bacteria. He observed the sperm cell, which is there in human, right? Sperm, you know na? Yes, the sperm cell is there in ह्यूमन में भी सिर्फ एक मिनट. बेसिकली एंटन वैन लीeuwenhoek ने रेड ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व करा, उन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करा, उन्होंने और भी यूनिसेलुलर जो सिर्फ एक सेल के बनते हैं उन ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करा, उन्होंने फिश, फ्रॉग, मतलब ये सब चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व करा. ठीक है. ही यूज्ड अ होममेड माइक्रोस्कोप विद इम्प्रूव मैग्निफिकेशन. सो बेसिकली एंटन वैन लीeuwenhoek के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है. इट्स ओनली सेइंग दैट he discovered the living cell, and the name of their living cell is red blood cells, bacteria, unicellular organisms, fishes and frogs. Okay, now comes your Robert Brown. आए थे अब. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आए थे. अब बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था न्यूक्लियस सेल में इन द ऑर्चर्ड रूट. अब बेसिकली अगर हम सेल का कुछ फिगर्स बनाएं, मान लीजिए अगर हम सेल का कोई फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली सेल कैसे बनता है, पहले तो एक ये नहीं लेंगे, वेट, क्या हो रहा है, ऐसे रहता है कि नहीं. उसके बाद यहाँ पे बीच में एक स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्मॉल, इतना बड़ा. फिर यहाँ पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. अभी मैं सब बताऊंगी. ओके, सो डू नॉट बी वरी. इस पोर्शन में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. डू नॉट बी वरी. बहुत बेकार सा बना है बट इट्स ओके.
मान लिया ये मेरा सेल है, ठीक है, मान लिया ये सेल है, तो क्या हुआ, मान लिया सेल है, मान लिया मेरा सेल है, ओके। ये जो पार्ट है जो हम लोग ने वाइट कलर से जो बनाया था, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस पार्ट, ये पार्ट जो है, ये पार्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ का जो पार्ट है, इसके अंदर का जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, राइट, ये है साइटोप्लाज्म। ओके, और द पिंकिश पार्ट इज योर न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी इन ऑर्चिड रूट। अब बेसिकली पता है, कोई भी अगर सेल रहे, राइट, इन द सेल न्यूक्लियस शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होना ही चाहिए। ओके, यस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑब्जर्व करा था इन ऑर्चिड रूट्स। Okay, now we are going to see the cell theory. Okay, we are going to see cell theory. Cell theory. Hi. A German botanist, एक यहाँ पे आए हमारे जर्मन के बॉटनिस्ट। अब भाई ये क्या होता है? बॉटनिस्ट मतलब कि अ पर्सन who study about plants। तो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट, अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द प्लांट, जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। उनका नाम क्या था भाई? हिज नेम वॉज M.J. स्केल्टन। M.J. स्केल्टन in 1838। ठीक है, पहले हमें इनके बारे में देखना है। एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द प्लांट, जो पर्सन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उनका नाम क्या था? M.J. स्केल्टन in 1838। ये एक हो गया हमारे लिए, ठीक है। सेकेंड आए अ जर्मन जूलॉजिस्ट। एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अब हमें इनके बारे में देखना है कि ये जूलॉजिस्ट क्या होता है। वेरी सिंपल इट इज। जूलॉजिस्ट मीन्स a person who study about animals। ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना, ह्यूमंस के बारे में पढ़ना, ओके, उन्हें बोलते जूलॉजिस्ट। अब उनका नाम क्या था? हिज नेम वॉज थियोडोर स्क्वान।
born. Okay, in 1839. अब पहला हम लोग ने पढ़ा कि a German botanist, a person who studied about the plant, his name was M.G. Skelton in 1838. अब हम पढ़ रहे हैं a German zoologist, a person who study about the animals, humans, like that. Okay, और उनका नाम क्या है? Theodor Skelton in 1839. They both formulated a cell theory for plants and animals. ये दोनों जो हैं, जो बॉटनिस्ट है और जूलॉजिस्ट है, इन दोनों ने एक थ्योरी फॉर्म कर दी. ओके, इन्होंने थ्योरी फॉर्म की थी, सेल थ्योरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए बनाई थी इन 18. अब एक और आते हैं हमारे 1885 में. 1885 में a German फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चॉ. रुडोल्फ वर्चॉ, ये इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इन्होंने एक फ्रेज दिया था वहाँ. एक मिनट, ये जो रुडोल्फ वर्चॉम है, इन्होंने एक फ्रेज़ दिया था. ठीक है, फ्रेज़ क्या होता है? आप देखो, एक होता है फ्रेज़ होता है, वहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट उसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं आती, उन्हें हम जनरली फ्रेज़ बोलते हैं. ओके, अब फ्रेज़ उन्होंने क्या दिया था? वी विल राइट ओवर हियर कि क्या फ्रेज़ दिया था उन्होंने. ओमनेस सेलिला एक मिनट ओमनेस सेलिला ई सेलिला. ओमनेस सेलिला ई सेलिला, ये फ्रेज़ उन्होंने दिया था. अब इसका मतलब क्या होता है? इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज़ इज़ all the cell arise from pre-existing cell. That is true. जितने भी सेल होते हैं ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल पहले से हैं, उनमें जब सेल विजन होता है तो न्यू सेल्स आते हैं. तो बेसिकली जितने भी सेल्स हैं, राइट, एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ओके, सो बेसिकली ओमनेस सेलिला ई सेलिला का मतलब, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये फ्रेज कौन दिया था? अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रुडोल्फ वर्चॉ ने दिया था. ओके, अब भाई ये वाला जो फ्रेज है, ये हमारी सेल थ्योरी में ऐड कर लिया जाता है. ओके, अब हमें पढ़ना है सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी. फर्स्ट क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें पता है, ये सोबर पढ़ते हैं कि बिना सेल के हम फॉर्म ही नहीं होते. मान लिया एक दीवार है यहाँ पे, इफ़ इट इज़ अ वॉल, ये वॉल है. अब ये वॉल को बनाने के लिए ऐसे तो थोड़ी ना कि हम बोल दिए भाई मेरे आगे एक दीवार है. दीवार को बनाने के लिए विल रिक्वायर ब्रिक्स. मान लिया, एक मिनट, ये सब स्मॉल ब्रिक्स है. ठीक है, अरे यार, ये सब ब्रिक्स हैं. ये सब ब्रिक्स हैं, बहुत बेकार सी ब्रिक है, बट मान ले रहे हैं. मान ली ये सब ब्रिक्स है. अब बिना ब्रिक्स के कोई वॉल तो बन ही नहीं सकती, राइट? इफ़ यू वांट टू मेक अ वॉल, यू विल रिक्वायर ब्रिक्स इन दैट. without bricks, can you make a wall? No. So for that you will require bricks, right? So now if we say, we can say that these bricks are what? These bricks are cells. Similarly, if these bricks are cells, so the wall is our body. अब हम इस wall को ना हमारी body मान ले रहे हैं.
जब हम बहुत सारे सेल्स को मिलाएंगे देन इट विल फॉर्म अ बॉडी. इज इट क्लियर और नॉट? यस, जैसे दीवार को बनाने के लिए फिल रिक्वायर द ब्रिक्स इन दैट, राइट? सिमिलरली नाउ वी विल assume that these bricks are cells and these wall are human body. Similarly, when we'll combine so many cells together, it will form a human body, right or not? Is it clear or not? Hope it is clear. ओके तो बेसिकली बिना सेल्स के कोई बॉडी बन ही नहीं सकती है. तो दैट इज़ वाई वी से दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लियर? Second thing is, cell is the basic unit of function as all the metabolic reactions takes place inside the cell. Now the question that comes is, what is metabolic reaction? मेटाबॉलिक रिएक्शंस उन्हें बोलते हैं जो भी रिएक्शंस हम जितने भी रिएक्शंस होते हैं, राइट, डाइजेशन वाइज जो भी होते हैं ना, वो सब हमारे सेल्स से ही होते हैं. तो बेसिकली जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, वो सब सेल ही टेक प्लेस करती है. बिना सेल के वो तो होते ही नहीं है, कि नहीं? अच्छा जी. ना cell is a unit of hereditary as it contains hereditary materials inside the nucleus. अब cell is unit of, अब basically पता है एक होता है cell is a unit of hereditary, you can say that genetic, है कि नहीं? ये सेल्स, ये जितने भी हम लोग डायग्राम बनाए थे अभी, सेल्स के अंदर तो ये सब होते हैं. सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूक्लियोल होते हैं, उसमें भी क्रोमोसोम्स होते हैं, इन ऑल दीज थिंग्स. तो वो सब क्या करते हैं, वो सब एक क्वालिटी को, एक पेरेंट की क्वालिटी को उनके ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने की हेल्प करते हैं. मतलब कि पता है ना कि कोई चाइल्ड अपने पेरेंट्स की तरह क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल्स ओनली, राइट? तो बेसिकली ये सब काम भी सेल से ही होता है, बिना सेल्स के भी नहीं होता. नाउ द लास्ट इज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट ऑल द सेल्स, और एक मिनट all cells arise from pre-existing सेल्स. मतलब कि जो सेल पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनसे न्यू सेल अराइज होती है. प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि द सेल विच आर प्रेजेंट, जो लाइक पहले से प्रेजेंट है, ठीक है. प्री मतलब क्या होता है? पहला, पहले से, ठीक है. जो पहले से हमारे बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब उनमें सेल डिविजन होता है तब न्यू सेल फॉर्म होते हैं. होप इट इज क्लियर टिल हियर. पक्का? ओके. Now we have to see that cell number, their sizes and their shapes. ये एक न्यू टॉपिक है हमारे पास. Cell number, size, शेप, ठीक है. अब इसमें जो पहला टॉपिक है मेरे पास, दैट इज सेल, हाउ न्यूमरस दे आर. इसमें का भी जो फर्स्ट टॉपिक है मेरे पास, दैट इज सेल, हाउ न्यूमरस they are. Now, depending upon the number of cells, we have already said that कि organisms में भी unicellular होते हैं और multicellular organism होते हैं.
है कि नहीं? हम लोग ने ये सब पढ़ चुका है। यूनिसेल्युलर मतलब कि यूनिसेल्युलर, okay, so basically wait, uni means what? uni means one, uni means one, ठीक है। यूनि का मतलब होता है वन। सेल्यूलर मीन्स सेल्स, ठीक है। सेल्यूलर मतलब होता है सेल्स। अब हम जब इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करेंगे देन इट विल फॉर्म वन सेल, ओके। अब इसी के आगे यूनिसेल्युलर के आगे अगर हम ऑर्गेनिज्म जोड़ दें तब क्या बनेगा? वन सेल ऑर्गेनिज्म। नाउ यू कैन गेट दैट कि unicellular organism means the organism who are made with only one cell. Their body contains only one cell. Example of those organisms are bacteria. It have only one cell. Yeast, paramecium, amoeba, chlamydomonas. Right? These all are the examples of unicellular organisms. Okay, so we will write the example of one cell. Amoeba, paramecium, yeast, bacteria, क्लेमाइडोमोनास। सो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के। ओके, नाउ कम्स योर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी? बहुत लोग कहते हैं ना यू आर मल्टी टैलेंटेड, राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी? ऑब्वियसली मैनी, राइट? मल्टी मतलब होता है मैनी। ये हटा दो, एक मिनट। मल्टी मीन्स मैनी। ओके, अब सेल्यूलर मीन्स सेल्यूलर सेल। सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। अब टोटल ये क्या फॉर्म करेंगे? इट विल फॉर्म organisms who are made with many cells. Organisms who are made with many cells are only called as multicellular organisms. Now example, humans, animal, okay, plants, ये सब किस में आते हैं? ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, राइट? ओके, होप इट इज क्लियर टिल हियर. Okay, now cell, how small or large they are, that we have to study. Cell, how small or large they are.
नाउ द सेल आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट, हमें पता है कि सेल इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम, राइट. इफ़ यू वांट टू सी देम वी रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप. हाँ, ये पता है सबको. द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म, अ PPLO measuring 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. अब सबसे छोटी सेल, द स्मॉलेस्ट सेल. अब यहाँ पे जो सेल हाउ स्मॉल और लार्ज दे आर, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, तो प्लीज़ बी केयरफुल. ओके. द स्मॉलेस्ट सेल is mycoplasm. जो सबसे छोटी सेल है दैट इज़ योर माइकोप्लाज्म, और PPLO. और इसकी ये कितना मेजर करती है? इट इज़ 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, मतलब बहुत छोटी है. ठीक है, समझ गए. एंड द लॉन्गेस्ट सेल जो लॉन्गेस्ट सेल है आर द नर्व सेल मेजरिंग. ओके. तो जो लॉन्गेस्ट सेल है दैट इज योर नर्व सेल. अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क है. लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, ओके, और लार्जेस्ट मतलब बड़ी. ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट सेल है दैट इज़ नर्व सेल. हमें पता है कि नर्व सेल जो है वो बहुत बड़ी होती हैं, लंबी होती है, राइट. वो ऐसे होती हैं, समवट लाइक दिस, ऐसे करती हैं, फिर ऐसे इसमें से ऐसे, ठीक है, ऐसी होती हैं. तो ये जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल हैं जिनकी साइज़ है एटलीस्ट 1 मीटर, 1 मीटर. अरे यार, 1 मीटर किसकी साइज़ है? ये नर्व सेल की साइज़ है. ओके. अब जो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ये तो हमारी क्या थी? ये हमारी लॉन्गेस्ट सेल थी. लार्जेस्ट है ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच का जो एग है दैट इज़ ऑल्सो अ सेल एंड दैट इज़ वेरी लार्ज. ओके. लार्जेस्ट सेल इज ostrich egg, that is 170 into 135 millimeter in diameter. ओके. अब बात क्या करनी है? ये हमें समझ में आ गया कि स्मॉलेस्ट कौन सी है. कौन है स्मॉलेस्ट? माइकोप्लाज्म है. ठीक है. लॉन्गेस्ट कौन सी है? नर्व सेल है. लार्जेस्ट कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग है. होप इट इज़ क्लियर टिल हियर. अब ये वाला टॉपिक हमारा इधर ही एंड हो रहा है. ओके. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी विल सी इन अ नेक्स्ट क्लास. होप इट इज़ क्लियर टिल हियर. ओके. So thank you so much for remaining with her, like, and so patient. Okay, patience, I mean. So thank you so much and bye bye guys.